ਅਸੀਂ ਜੀ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਬਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵੀਪਰ ਰੱਖੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਠੇਕਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਾਕੂਬਾਜੀ ਹੋਲੀ ਰਾਤੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਿਆ ਸੀ 1959 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਟੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ 23D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਮ। 23 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੰਦੂਰ का काम करते हैं। टोटल ਅਸੀਂ 18 बंदे हैं। आज मेयर साहब ने जनता दरबार में बहुत अच्छे से हमारी बातें सुनी, तो उनको भी मालूम है कि ये तंदूर वाले सबसे पुराने हैं। पर बात वहाँ अटकी कि एक रेडी वाले तंदूर, एक ज़मीनी तंदूर, वहाँ पे आगे बात थोड़ी सी हो गई है। पर अब मेयर साहब ने आश्वासन दिया है, लड़ाई थोड़ी लंबी है, पर हाउस में जब आपका ये मुद्दा लाएंगे तो थोड़ा आपको भी राहत भी मिल जाएगी। अब उन्होंने हमारे को ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास भेजा है। किस तरह से आप देखते हैं कि कब से तंदूर लगा रहे हैं? साडा मेरे पहले सस सहुरे लाते सन, उस तो बाद वो बेचारे बजुर्ग हो गए। इन्हें पापा पढ़ना, मेरा घर पढ़िया दा सी, और नौकरी नहीं मिली। फिर मैं बजुर्गों वालों वेख के मेरे को रहा नहीं गया, तो मैं अपने आप बहुत छोटे बच्चे छड़ के 1.25 महीने के छड़ के तो मैं तंदूर से रोटियां लाइया। अज साडे बच्चे उत्थे दे उत्थे ने, जिन्हों की असीं सेवा की वो किते दे किते पहुँच गए नहीं। तो सानू इहो रिजल्ट मिलना सीगा भी तुसीं इत्थों जाओ। कब से तंदूर लगा रहे हैं? मैं मेरे को हो गए 52-53 साल हो गए तंदूर लगा के। हाँ जी, पहले मेरे सस सहुरे लाते थे इसी जगह पे। एक ने 3 पैसे की रोटी से मैं शुरू किया, देखो भी कितने साल हो गए पहले। आपको सबको ही पता है भी 3 पैसे की चीज़ होती थी। मेरा नाम राकेश कुमार है सर, हम सेक्टर 25 से कुम्हार हैं सर, ठीक है जी। और जो हमारे बुजुर्ग आए थे सर, जब चंडीगढ़ बसना स्टार्ट हुआ था तब हमारे यहाँ बुजुर्ग आए थे, और जो जितनी भी यहाँ बिल्डिंग बनी है सभी ने, हमारे बुजुर्गों ने, उन्होंने गधे घोड़ों से वो बिल्डिंगों का मटेरियल सारा जो था वो सारा उन्होंने ये किया है। और आज हमें अपने आशियाने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ रहा है सर। हम लोक अदालत से भी केस जीते हैं सर, उसके बाद हम हाई कोर्ट से भी, ठीक है सर। आप मेयर साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको जल्द आपका समाधान कर दिया जाएगा। आपको घर से झाड़ दिया गया था, उठा दिया गया? हाँ जी। क्या हुआ था? ये हमारा 2007 की बात है सर। क्या हुआ था सर? उस टाइम हमारी कच्ची कॉलोनी होती थी, कुमार कॉलोनी, वो वहाँ से उठा दिए गए थे सर। और हमारे 90 घर थे, जिसमें से 48 घरों को मिल गया था, और हम 42 घर रह गए थे, ठीक है सर।
वो फेज 1 के और फेज 2 का कोई ऐसा मसला हो गया था। पहले वो जो जगह थी ना सर, कुछ घरों को तो मलोया में दिया गया है सर, ठीक है। हमें भी यही बार बार बोला गया कि भी आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, पर वो अभी तक नहीं हुआ सर। और ये ऐसे हम अपना जो पुराना हम कुम्हार हैं तो सर मिट्टी का काम करते हैं, अगर हमारे पास जगह नहीं होगी तो हम काम कहाँ करेंगे सर। हमारी ऐसे ये लगा लो कि भी हमारी 2 पीढ़ियां जो थी ना वो खप चुकी हैं, अब तीसरी पीढ़ी हम हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं बताने लग रही, 9 तो मौत होगी भाई, प्लाट मिलेंगे ऐसे कर करके। पीजीआई भी हमारे से बनी है, जब तो बसाए गए थे भाई चंडीगढ़ बसाओ, और आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और हमको प्लाट छत नहीं है सिर के ऊपर, फिर भी हम बैठे। अब मेयर किससे मिले हैं? मेयर से क्या कहना है उनका? उनको ये कहना भाई इनको दो, इनको प्लाट दो, इनका बनता है सबकी में छत दो इनको। अरे 1 साल हो गया काम करें भी ना कोई रहने देता, ना कोई प्लाट में रहने देता, ना कोई गिरावने देता, ऐसे धर धर की ठोकर खा रहे। देखिए कि समस्या क्या बोले कि आप देखते हैं कि हजारों आंखें आपकी तरफ देख रही हैं और शहर की जनता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और खासकर मैं जब भी अपने ऑफिस में आता था तो मैं जैसे ही पहुंचता था तो मुझे लगता था कि दुनिया को कैसे पता लगता है कि मैं ऑफिस में आकर रश पड़ता था। तो ध्यान आया कि वो मेरे से नहीं, वो मेयर ऑफिस के कारण लोग यहाँ आते हैं, जो ऑफिसर उनको अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन के हैं चाहे प्रशासन के अधिकारी। आज आप देख रहे होंगे मेरे पास आधे से ज्यादा तो एडमिन के काम आए हैं, हाउसिंग बोर्ड के काम आए हैं। तो मैं ये देख रहा था कि प्रशासन के भी अधिकारी अगर नहीं सुनेंगी आम जन की तो जनता कहाँ जाएगी। और मेरे लिए तो वैसे प्रेरणा स्त्रोत्र कौन है, हमारे 82 वर्ष के महामहिम जी गुलाबचंद कटारिया जी, कैसे वो जनता दरबार लगा रहे। हम दोनों को लोगों के बीच में इसलिए तो जाना पड़ रहा है कि धरातल में लोगों की जो अपेक्षा है वो काम हो, अब वो काम नहीं हो रहे, इसी कारण वो आ रहे हैं। सौरभ जी, आम लोग या प्रशासन जो है वो आदेश तो कर देते हैं चिट्ठियों में, अफसरों को बोल देते हैं, लेकिन जो अफसरशाही है वहाँ पर बहुत लेट होती है। इसके बारे में आप सोचा कि किस तरह समझ में बैठाएंगे आप? देखिए, मैं वैसे अपनी बात कहूँ कि जब से मेरे पास लोग आ रहे हैं और जो मैं अपनी चिट्ठियां दे रहा हूँ, एक तो लोगों को आपको प्रॉपर गाइड करना होता है, कुछ काम कानून के दायरे में होते हैं। जब आप लोगों को उसकी प्रॉपर जानकारी देते हैं तो लोगों को भी पता लग जाता है कि काम के किस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब प्रशासन के पास अगर कोई काम जाना है तो वो प्रशासनिक अधिकारी किस उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करेंगे वो आम जनता को नहीं पता होता है। तो हमारा धर्म ये कि लोगों को जागृत करना और लोगों को बताना और लोगों के काम करवाने। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं अधिकारियों से ज्यादा उनके स्टाफ की बात कर रहा हूँ। अब जैसे डीसी ऑफिस में है, अब डीसी ऑफिस में वायलेशन के लोग एक दूसरे की झूठी कंप्लेंटें करते हैं, अब उस पर आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। हाउसिंग बोर्ड में एनोनिमस कंप्लेंट्स आती है, आप नोटिस भेज देते हैं, तो ये तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एनोनिमस कंप्लेंट्स को कभी आपने देखना ही नहीं है, और आप एनोनिमस कंप्लेंट्स को एंटरटेन कर कैसे रहे। अब ये बात मुझको जब पता लगती है तो मैं भी हिल जाता हूँ कि कानूनी जो ज्यादा है मेरे से ज्यादा तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, और हमें बताना पड़ता है उनको। अब वो क्या होता है कि एनोनिमस कंप्लेंट्स में उन्होंने एक्शन ले लिया होता है, अब वो पीछे जा नहीं सकते। अब पीछे जा नहीं सकते हैं तो गलती जिस व्यक्ति की है उस पर तो एक्शन लीजिए। अब जिस बाबू ने नोटिंग बनाई उस पर क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं। आज मैं आपके माध्यम से एक बात बोलता हूं, आप जितनी भी कंप्लेंटें स्टेट ऑफिस और हाउसिंग बोर्ड की निकाल के देख लीजिए, कंप्लेंट कह रहा हूं स्पेसिफिकली एनोनिमस कंप्लेंट्स हैं, उसी पे लीगल नोटिस इशू हो रखे हैं। तो वो लीगल नोटिस जिस बाबू ने इशू करवाए, आज तक कितने आपके बाबुओं पे एक्शन लिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम जंगल राज में नहीं रहने देंगे चंडीगढ़ में, इतना तो कंफर्म्ड है कि हम तभी फील्ड में आना पड़ा। आज देखें आप, मैं खुला दरबार अपने ऑफिस के बाहर बैठा हूँ और लोग जो आ रहे हैं मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से 500,000 लोग सुबह से आ चुके हैं, और मेरा एक ही मत, आज सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि मुझे भूख तब मेरी खत्म होगी जब मेरी जनता यहाँ से खुश होगी। सर, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, अमृत सरोवर। गवर्नर साहब उद्घाटन करते हैं और उसके दूसरे महीने वहां से लाइटें बिजली वाले
ले जाते हैं कि पानी का बिल नहीं भरा, मीटर तक उखाड़ के ले जाते हैं। इसका समाधान कैसे होगा जबकि हमारे प्रशासन ने उधर अभी हाँ, मेरे पास डड्डू माशा के जो गांव के निवासी मेरे पास आए थे, उन्होंने कई ऐसी ऐसी बातें मेरे पास लाके दी है, जैसे पानी नहीं आ रहा है। अब जाइए, कई दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पे निवासियों के पास। जब वो उनकी बात को जब हमने थोड़ा करवाया तो उन्होंने दूसरा मेरे ध्यान में लाके दिया कि वहां का जो जल मिशन के तहत सरोवर बनाए गए थे, उन सरोवर की क्या हालत है, उन्होंने मुझे उसकी मूवी दिखाई। अब जब वो उसकी मूवी दिखा रहे थे गंदगी का, तो साथ में ध्यान आया कि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वहां पर पोल लगे हैं सरोवर के साथ, उसकी लाइटें बंद पड़ी है। तो मुझको रेजिडेंट्स ने बताया कि उसका बंद होने का कारण ये था कि उसका मीटर निकाल के ले गए। तो अभी मैंने उसके लिए इंक्वायरी मार्क की, ऐसी बीएनडर को मैंने भेजा है, और ऐसी जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवीजन है, ऐसी पब्लिक हेल्थ है, उन सबके पास मैंने ड्यूटी लगाई है कि इसके मुझे अपडेट दें, और जैसी अपडेट आएगा तो उस पर कार्रवाई की। सर सबसे ज्यादा यहाँ पर वेंडर आए हैं और वो तंदूर वाले आए हैं जो चंडीगढ़ में बैठाए गए, उनका भी मामला संज्ञान में आया, उनको भी वहां से हटाया जा रहा है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंस्पेक्टर है वो तंग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, मेरे पास सेक्टर 22 के मार्केट के उनके अध्यक्ष भी आए हुए थे, मुकेश जी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ वो ही आए हैं, वेंडर्स भी आए हैं और तंदूर वाले भी आए हैं, और भी अलग अलग विभिन्न लोग भी आए हैं, शहर के लोग भी आए हैं जहाँ पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। फिर MOH के लोग भी आए कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लोगों की मेरे पास दिक्कतें आई हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जो अभी विषय स्ट्रीट वेंडर्स का है, उसमें हमारे हाथ बंधे हुए सुप्रीम कोर्ट के कारण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट ऑर्डर जो निकाला है, खासकर ESP कैटेगरी से जिनको बाहर कर दिया है, अब हमारे लिए वो मुश्किल हालात बने हुए, लेकिन हमें तो उसकी पालना करने पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या रास्ता निकल सकता है कानून के दायरे में, वो हम सोचेंगे।